Welcome back now to the big story that is playing out in the state of Uttar Pradesh right ahead of the elections. A murder case has now been registered against 6 policemen in connection with the death of a Kanpur-based businessman. Manish Gupta was allegedly beaten up by police to death during a raid in a hotel in Gorakhpur. The police says that Kumar received a head injury after which he fell on the ground, and he received this head injury and he fell because, according to the police, he was drunk. The police says that Mr. Kumar had also gone into coma. Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath has spoken to the deceased's wife and extended his condolences. The state government has also announced a 10 lakh rupee compensation as assistance to the family. Now, what has caused much embarrassment to the Gorakhpur district administration has been a viral video that showed the DM and SP of Gorakhpur pleading with Manish Gupta's family not to file an FIR. इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। दो दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। रात में एक होटल में चेकिंग कराई गई, जो आदेश वहाँ के एसएसपी के एक जनरल आदेश के तहत की जा रही थी। वहाँ एक कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से, उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। Let me go straight across to Pranshu Mishra, who is joining us on the story. Pranshu, if that was the case, then why has a murder case been registered against the 6 policemen? Well, Shreya, the sort of defense which is coming in from one of the senior officers, police never acts in that human manner. At least that is what the experience of the common man is. Now, what is emerging in this case and why this case has suddenly become so sensational is that, one, this case is emerging or is being showcased by the opposition as the proof of police high-handedness. What often opposition calls that the UP is becoming a police state under Yogi Adityanath, the sort of immunity that has been given to the UP police, and therefore opposition's viewpoint is that in your effort to actually check on the mafia, you have created a new element, a new mafia in the name of UP police. That is what the allegation from the opposition is. The another theory which is doing the round is that in Gorakhpur, what was actually happening was that UP police, certain people in among the Gorakhpur police were in this habit or in this practice of targeting the businessmen who used to visit Gorakhpur because they felt they could be, having a lot of cash, and therefore on the pretext of investigation, on pretext of, some goons or criminals hiding in the hotel, often money was taken away from these businessmen. That is what the allegation against the cops is. So it is basically an extortion racket that was probably going on was being, managed by certain people within the Gorakhpur police. That is the broader allegation, which of course needs to be corroborated with the evidences. In this case, the manner in which Priyanka Gandhi yesterday called up the family of late Manish Gupta, today Akhilesh in fact drove down to Kanpur to meet the family members, that clearly sent in an alarm in the BJP, and that's the reason why suddenly the police, which was not registering FIR, has now registered an FIR, and the government has gone a step ahead, sacking all these 6 policemen from service. So the message Yogi Adityanath wants to give is that, he's strict even against if cops are found guilty, if cops are, indulging into any wrongdoing, and he's basically, you can see it as also as a lot of, damage control exercise by the Chief Minister and the government in the election year when opposition is already making it an issue. The opposition is already saying that this is Uttar Pradesh's encounter culture that is at play. Pranshu, this is the question then. The fact is, what is embarrassing the Uttar Pradesh administration no end is that viral video that we have spoken about, where the DM and the SSP of Gorakhpur are asking Manish Gupta's family, his wife, not to register an FIR. Is there any explanation coming in from the district administration as to why they would not want the family of someone who's been killed, murdered, died in a hotel to register an FIR?
Yes, Shreya, you know, this is the entire story of how what opposition and, you know, the critics of the government describe as the bureaucratic police high-handedness. And this is not the first case. If you recall that in early years of Yogi government, there was a very infamous Vivek Tiwari murder case. An Apple executive who was shot dead during a routine vehicle checking by men in uniform in Gomti Nagar area of Lucknow, and that was a case that has created a huge sensation across the country. At the fag end of the government, when the election UP is going to the polls, there is another case where a trader is allegedly beaten to death by 6 men who are wanting to extort money. That is what the allegation from the family is. And again, it highlights that over the past 4 years, the cases of police high-handedness have not gone down. Further, coupled with the fact that Gorakhpur is the native constituency of UP Chief Minister, the officers there, the general expectation is that they would be more humble, more sensitive as far as Yogi government's larger pro-people agenda is concerned. But here we are seeing that these very officers are not allowing the family to get an FIR registered. So I think that's where it becomes a lot more embarrassing for the state government, and that's the reason why the state government has now tried to move in, set an example by sacking 6 policemen from service. Pranchu, I'll request you to stay on with us. We are getting political reactions. IP Singh from the Samajwadi Party is joining us. IP Singh जी, आप क्यों कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है कि ये उत्तर प्रदेश का जो इनकाउंटर कल्चर है उसकी वजह से मनीष गुप्ता की मौत हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है। अभी विवेक तिवारी के बारे में बता रहे थे, गोमती नगर इलाका लखनऊ का था। सिर्फ बातचीत करने पर एक प्राइवेट कंपनी में बड़े वहदे पर काम करने वाले विवेक तिवारी के माथे पर पुलिस वाले ने गोली मार दी थी। आपको याद होगा कि हाथरस में जो रेपिस्ट थे उनके साथ सरकार खड़ी रही। एडीजी कानून व्यवस्था ने साफ तौर से कहा कि कोई इस तरह की रेप की घटना नहीं हुई। मनीष गुप्ता के साथ जो कुछ भी गोरखपुर में हुआ, मुख्यमंत्री के मठ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ये होटल था। वहां इस तरह की वारदात आए दिन होती रहती है। उत्तर प्रदेश के होटलों से अवैध वसूली पुलिस करती है। मुख्यमंत्री पहाड़ी ठाकुर हैं, इसलिए 77% थानों पर मोर देन 77% थाना अध्यक्ष जो है एक जाति विशेष के लोग हैं और वो पुलिस के लिए, कप्तान के लिए वसूली करते हैं। डीएम कभी बंगले से बाहर नहीं जाता, कप्तान कभी बंगले से बाहर नहीं जाता, डीआईजी कभी अपने बंगले से बाहर नहीं जाता, कभी दौरा। अब मीडिया कभी नहीं दिखाते कि आज कप्तान निकले, डीआईजी निकले या आईजी निकले या एडीजी निकले। एक सिलसिलेवार वसूली थाना अध्यक्ष करके नीचे से ऊपर तक देता है। अभी जो स्टोरी आई है कि होटल और थाना अध्यक्षों के बीच डील होती है, अगर कोई व्यापारी आता है तो पर्टिकुलर कमरे में पुलिस घुस जाती है और उस कमरे में जाकर उस व्यापारी को प्रताड़ित करती है और मारा, इतना मारा। आप बताइए, उसके छोटे बच्चे, एक बेटा है 3-4 साल का, वो पत्नी उनकी अभी 30-32 साल उम्र है। अब उस घर को उजाड़ दिया है पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को रोकने का बहुत प्रयास हुआ, फिर भी वो पीड़ित परिवार के घर गए। एक मिनट कंक्लूड कर रहा हूँ। पीड़ित परिवार के घर कानपुर पहुंचे, उस बेटी से मिले, उस मासूम बच्चे से मिले। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि इसको IP सिंह जी, उन्होंने क्या कहा वो हमें पता है, क्योंकि अभी उनका समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव का, उनका साउंड बाइट भी चला है, तो हमें पता है उन्होंने क्या कहा है। धर्मवीर चौधरी हैं बीएसपी के, he is joining us on the broadcast as well. Mr. Chaudhary, the fact is that the Uttar Pradesh government has cracked the whip. The 6 policemen have been suspended. Murder charges have been framed against them. What more can a government do? मैडम, आज बहन जी का ट्वीट आया इस संबंध में। हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस नंगा नाच कर रही है, इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो तो हो गया। और ये छोटे नहीं मैडम, एसएसपी डीएम के खिलाफ होना चाहिए। एसएसपी डीएम की जिम्मेदारी है कि जिले में क्या हो रहा है। और आपने देखा होगा जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें डीएम और एसएसपी जो है किस तरीके की वार्ता कर रहे हैं कि ये मुकदमा ही दर्ज ना हो उस पीड़ित परिवार से। तो ये इंतहा है एक जुल्म की। ऐसा जुल्म तो अंग्रेजों के समय भारत में हुआ करता था, जब
अंग्रेजों का शासन था इस देश में, अब तो लोकतांत्रिक प्रणाली है। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, ये ठोकी बाबा की पुलिस है, ठोक देती है। ये रात में सोते हुए ठोकेगी, दिन में चलते हुए ठोकेगी, घूमते हुए ठोकेगी, लेटते हुए ठोकेगी। ये रावण राज है, जंगल राज है, गुंडा राज है ये पुलिस का। अच्छा। और इसको कौन बना दे रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी बिरादरी के लगे हुए 77% थानेदार। ठीक है, ठोक देंगे, गोली मार देंगे, आपको भी मार देंगे। नहीं क्यों मारेंगे ये भाई ऐसे? ब्रजेश मिश्रा जी के जो है वहां पर आईटी ने छापा डाला ना, उन्होंने न्यूज चलाई, तो ये किसी को भी मार सकते हैं। ये ठीक है चौधरी जब ये जी, सोते हुए व्यापारी को मार सकते हैं तो ये किसी को भी मार सकते ये हैं। आप बहुत बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत बड़े हाँ। इल्जाम लगा रहे हैं। फैक्ट इज कि योगी ये आदित्यनाथ किसी को भी मार उत्तर सकते प्रदेश हैं। की जनता ये ने चुना किसी है। को भी मार सकते हैं। अच्छा ठीक है धर्मवीर जी, आपने अपनी बात रखी। आई डोंट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, यू आर गोइंग टू अदर एक्सट्रीम्स। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के हैं। राकेश जी, ऑपोजिशन इस मामले में तो ना योगी आदित्यनाथ को या उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, गोरखपुर में जो एडमिनिस्ट्रेशन को है, उनको छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है वो बहुत एम्बैरेसिंग है आप लोगों के लिए। देखिए, गोरखपुर की पूरी घटना अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और इस पूरी घटना को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत त्वरित और कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इस पूरे मामले में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप है उनको निलंबित किया है। आप सुन लीजिए भाई, आप ये मैं बहुत गंभीरता से अनुरोध करूंगा। जेंटलमैन, मैं नहीं जानता। चौधरी जी और मिस्टर सिंह, मैं सबको बोलने का मौका देती हूँ, यहाँ पे सबको बोलने का मौका है। खत्म करने दीजिए राकेश त्रिपाठी को, आपके पास आती हूँ। हाँ राकेश जी। कठोर कार्रवाई मैडम क्या होती है पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी, आप शांत रहिए। हुआ? अरे एंकर मैं हूं ना, जरा शांत रहिए, सवाल मुझे पूछने दीजिए, आपको जवाब देने का मैं 100% मौका दूंगी। बोलिए त्रिपाठी जी। मैं नहीं जानता ये सज्जन कौन है जो इस तरह से बीच में इस तरह से अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग वहाँ पीड़ित पर जो, आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए चौधरी साहब, सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी घर से बाहर निकलिए पहले। किस तरह से अराजकता आपके सरकार के कार्यकाल में रही, उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। मैं इस पूरे मसले पर, लेकिन राजनीति करिएगा, राजनीति रोज करते हैं हम लोग, किसी और मुद्दे पर राजनीति करिएगा ना। ये राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। किसी व्यक्ति की दुखद रूप से जान गई है, इस पूरे मसले पर आप सियासी गिद्धमत बनिए, सियासी गिद्धमत बनिए, सियासी गिद्धमत बनिए। आपको पीड़ा का अंदाजा है? आप परिजनों की पीड़ा के बारे में विचार कर सकते हैं एक बार भी? राकेश त्रिपाठी, चौधरी जी एक बात तो सही कह रहे हैं, वो वीडियो एम्बैरेसिंग है, पूरा इंसिडेंट एम्बैरेसिंग है। तो डीएम और एसएसपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वीडियो में क्या है, वीडियो सही है नहीं है, इस पूरे मामले की बिना जांच किए, बिना पक्ष को सुने तुरंत कार्रवाई कर दिया जाना, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। और ऐसे मामलों में जो दोषी होते हैं उनको बच जाने का अवसर होता है। मैं आपको जिम्मेदारी से इस बात के लिए कह रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस मामले में किसी भी लापरवाह पुलिस अफसर को या कोई प्रशासनिक अफसर है उसको छोड़ने वाले नहीं है। स्पष्ट तौर पर निर्देश किया गया है, इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी और जो भी इसके दायरे में आएंगे उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं होगी। इस पूरे मामले में हम आपराधिक कृत्य को मान करके आपराधिक तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कराई है, गिरफ्तारियां इस मामले में पूरे करा रहे हैं। हम पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। और आप पीड़ित परिजन को स्वयं देखिए कि पीड़ित मरहूम मनीष गुप्ता जी की पत्नी ने इस बात को खुद कहा है कि इस पूरे मसले पर राजनीति न की जाए। जिस तरह से हंगामा करने का प्रयास किया जा रहा है, आप परिजनों की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? चलिए ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मवीर चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। आईपी सिंह फ्रॉम द समाजवादी पार्टी was joining us, so I'm going to thank him as well.